Today's topic is amines. These are the ammonia derivatives. They are formed from the ammonia. So ammonia, which is written just like this way, if you replace the hydrogen present here with the alkyl group, then these are the amines. So the ammonia derivatives, alkyl ammonia derivatives, you can say they are said to be the amines. Amines, they are of different type. When NH2 group is present, then that amine is termed as the primary amine or 1 degree amine. When NH group is present, it is termed as the secondary amine. And when single nitrogen is present with the 3 alkyl groups, then that is the 3 degree amine. So that is the 1 degree amine, NH2, NH it is 2 degree amine, and single N it is a 3 degree amine. How we can prepare the amines? There are numerous methods. When you are discussing the amine chemistry, you are advised to remember a name, Hoffman, because his contributions are much more regarding the amines, or in studying the amines, whether they are their synthesis or whether there are chemical properties regarding the amines. Now, what is the way of preparing the amines? This is Hoffman method of preparing the amines from alkyl halides. How the reaction proceeds, let us discuss here. So see here, it is RCH2Cl, that is the alkyl halide. So this alkyl halide, when treated with the ammonia, so there is liberation of hydro HCl molecule from here, hydrochloric gas, and NH2 that get attached to this part. So it forms the primary amine RCH2NH2. Further you treat with the alkyl halide, there is again liberation of HCl, H from the ammonia part or NH2 part here, and Cl from here, and we are able to get the 2 degree amine. Further treating it with the alkyl halide, again there is a liberation of HCl molecule, the product is 3 degree amine. Again treatment with this alkyl halide, again liberation of HCl molecules. At last what the product is formed, that is the quaternary ammonium salts. It is just like NH4Cl. Instead of hydrogen you are having the alkyl group. It is tetra alkyl ammonium chlorides. Now when I said about the preparation, I said that you are treating the alkyl halide with the ammonia. So why I am saying that this reaction then react with this, again reacting with the react, and again at last you are having the quaternary ammonium salt. Reason is that reaction doesn't stop at the first step. It completes up to the formation of mixture of the compound. Mixture of the compound means in the mixture you will have 1 degree amine RCH2NH2, you will have the 2 degree amine, again 3 degree amine, and quaternary ammonium salts are also present. Reaction is unstoppable. So reaction of little use, reason being mixture of amines that is formed, and at last you are getting the salt. तो इस वजह से रिएक्शन की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. What is the second method? It is much more discussed method, Gabriel thaliamide synthesis. ये थैलिक एसिड का डेरिवेटिव है. थैलिक एसिड जो है वो बेंजीन के साथ अगर अल्फा बीटा पोजीशन पे, एक पोजीशन ये दूसरी पोजीशन पे, दोनों पे COH ग्रुप लगाओ तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं. और इधर भी COH इधर भी COH, लेकिन इसका एमाइड जो है वो अमोनिया के साथ इस तरह से बनेगा CONH, which is linked to the both sides. So that is the amide of the thalic acid known as the thaliamide. When you treat with the base,
तो बेस वैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमोनिया भी बेस है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, सो देयर शुडंट बी रिएक्शन। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बोनिल पार्ट है, ये भी कार्बोनिल पार्ट है। दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसी हाइड्रोजन है? एसिडिक। सो दैट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ potassium hydroxide. OH and H will form water. So we are having the salt of the potassium salt of thalamide. It is potassium thalamide. That is the potassium thalamide. There is a ionic bonding now between the nitrogen and potassium. So easily it can be replaced with the alkyl group. If you treat it with the alkyl halide, there is liberation of KCl and we are getting N-alkyl thalamide. Once this is hydrolyzed, in presence of base or in presence of acid, we are getting the primary amine. Here the product is primary amine. Now which part came as a primary amine? जो NH का पार्ट था वो यहां चला गया NH2 में, और जो एल्काइल ग्रुप आपने यहां पर अटैच किया इथाइल क्लोराइड से, इसका मतलब कि अगर इथाइल पार्ट को वेरी कर दो आप इसको, which part? If you are वेरिंग दिस पार्ट, ये पार्ट आप वेरी करते हो, तो एट द एंड में आपके पास प्रोडक्ट के तौर पर किसी भी तरह की जो वो अमीन जो बनाई जा सकती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। दूसरा, ये जो NH पार्ट था, ये पार्ट एट द एंड जाके यहां पर क्या बन गया? NH2 बन गया। तो इसका मतलब ये NH जो है यहां पर NH2 बन रहा है और एल्काइल पार्ट यहां से आ रहा है एल्काइल हैलाइड से। सो दिस इज ए वेरी मच easier process as well as a process of the choice where we are able to prepare any type of amine as we need. अगर हमें यहां पर एनिलीन बनानी है तो एनिलीन तो नहीं बनेगी वैसे यहां से, क्योंकि एराइल हैलाइड्स यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स यूटिलाइज हो सकते हैं। एल्काइल हैलाइड कोई से भी यूटिलाइज हो सकते हैं, एराइल हैलाइड यूटिलाइज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप जो यहां पर ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इससे केवल 1 डिग्री अमीन ही बनाई जा सकती है। वी आर नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी अमीन एज वेल एज वी आर नॉट एबल टू गेट हेयर टर्शियरी अमीन और क्वार्टेन अमोनियम साल्ट को तो छोड़ दीजिए। तो ये रिएक्शन जो केवल स्पेसिफिक है किसके लिए? 1 डिग्री अमीन के लिए। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में सीधा पूछ ले व्हाट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। वैसे तो बहुत चॉइस वाला क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए पूछे जाने के लिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। लेकिन इस तरह से पूछ सकता है, राइट ए मेथड विच इज स्पेसिफिक ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, then you have to discuss Gabriel thalamide synthesis. Word he is using, specific for the preparation of primary amine, because by this method you are not able to prepare 2 degree or 3 degree amine. So these are some methods. One more method, very much important this much. Most of the time it is asked in the examination. What is हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन? मैंने पहले कहा था कि जब भी आपको अमीन केमिस्ट्री डिस्कस करनी है, हॉफमैन का नाम आपने पक्का याद रखना है। हॉफमैन मेथड जो है एक किस्म से रीअरेंजमेंट भी है ये। सी हियर इट इज RCONH2 amide is this one. When a amide is treated with bromine in potassium hydroxide, then we are getting a primary amine, potassium carbonate, potassium bromide and water. Again, this reaction is specific for the preparation of 1 degree amine. We are not able to prepare 2 degree और 3 degree amine. इसका मतलब गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हो गया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन जो है वो दोनों के दोनों रिएक्शन जो है प्राइमरी अमीन के लिए हैं। इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। रीजन बीइंग कि आप यहां से जितने कार्बन आइटम लेके चले हैं या जो जितने कार्बन आइटम इस एमाइड में है, एट द एंड में आपके पास अमीन में एक कार्बन एटम कम होगा। दैट कार्बन एटम विच इज CONH2 दैट इज लॉस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट इन द रिएक्शन। तो इसमें जो इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, चेन को डिक्रीज करने का मेथड भी है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। when you are treat with benzamide with bromine in KOH, you are getting the aniline. So aniline can be prepared
by this method, not by the Gabriel Thalamide synthesis. Now, what is the mechanism of the reaction? That is important here. Bromine, when treated with the hydroxyl ions, OH negative ions, then it gives the BRO negative ion plus BR negative ion plus water. थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूं रिएक्शन की. ब्रोमीन की सेपरेशन कर दो Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव. Br नेगेटिव तो ये पार्ट आ गया, और Br पॉजिटिव ब्रोमस दैट लिंक्ड विद द ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और Br पॉजिटिव, दैट इज BrO नेगेटिव आयन, हाइपोब्रोमस आयन. क्या बोलते हैं इसको? हाइपोब्रोमस आयन प्लस Br नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन चली गई यहां पर, 2 टाइम्स OH ले लो तो क्या बन जाएगा उसका? वाटर बन जाएगा. So that is the first reaction. Then this BRO negative ion, it interacts with the amide. It removes hydrogen from here, giving the hypobromous acid HOHBr. And here negative charge is left because hydrogen is removed without electrons. So 2 electrons they are left over the nitrogen. Then see the further reaction here. This BROH hypobromous acid which is being produced here, again it reacts with this anion, nitrogen anion, and bromine get attached to this, forming N-bromoamide. This is the N-bromoamide derivative here. N-bromo derivative of the amide, and simultaneously the liberation of OH negative ion from the above. ये Br और OH था, OH negative ion यहां से जो liberate हुए, these OH negative ion they are liberating hydrogen from here without electrons. Again a pair of electron it is present over the nitrogen and a negative charge, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गई है. Then bromine is lost from here, and after the loss of bromine, the component or intermediate which is left here, that is termed as the acyl nitrene. कार्बीन्स आपने पढ़ी हुई हैं, उसी तरह से नाइट्रीन्स होते हैं. नाइट्रोजन here it is singly bonded having the 2 lone pairs. तो यहां पर एक जो बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, टोटल कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? 5. देन देर इज ए शिफ्ट, बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है ये नाइट्रीन. Then there is a shift of electron toward this, and R group from here it detaches with the from carbon and get attached to the nitrogen, forming alkyl isocyanates. R N double bond C double bond O, इनको बोलते हैं alkyl isocyanates. When you treat them with the water, simply hydrogen get transferred to the nitrogen. It is NH, OH जो है वो कार्बन के साथ लगेगा. So that is a acid group here and attached to the NH. These are termed as the carbamic acids. And carbamic acids, very simply, by the heating, it loses the carbon dioxide from here. Only hydrogen left had that get attached to the N, forming the amines. So that is a Hofmann-Bromamide reaction or Hofmann-degradative reaction. तो एग्जाम में ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है विद मैकेनिज्म, और सिंगल नंबर क्वेश्चन भी हो सकता है व्हाट इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड. अगर 1 नंबर का आया है तो जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर मैकेनिज्म डिस्कस कर लेना है, लेकिन अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है विदाउट आस्किंग एनीथिंग, इट मींस स्पेसिफिकली यू हैव टू गो फॉर द मैकेनिज्म्स. जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे के सारे मैकेनिज्म आपको याद भी रह जाएं, कम से कम रिएक्शन का पक्का पता होना चाहिए, ताकि 3 में से 1.5 नंबर या 1 नंबर उसमें से आपको मिल सकता है. देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स. दिस कंपाउंड्स अमीन्स हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अमोनिया से मैच करती होंगी, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज जो वो डिफर भी करेंगी यहां पर. तो उसमें सबसे पहले है हॉफमैन एक्सॉर्टिव मिथिलेशन. आई ऑलरेडी सेड that when you are discussing the amine chemistry, remember the name Hofmann. What is this one? उसने पहला रिएक्शन दिया था प्रेपरेशन ऑफ अमीन का.
तो ये उसी तरह का रिएक्शन है, लेकिन थोड़ा सा डिफर कर रहा है यहां पर। उसमें भी लास्ट में क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनते हैं, इसमें भी लास्ट में क्वाटनरी अमोनियम साल्ट जो है वो बने हुए हैं। लेकिन पहला प्रेपरेटिव रिएक्शन जो था उसमें मैंने एल्काइल हैलाइड को जो वो अमोनिया के साथ ट्रीट किया था। यूजली जो लोअर मेंबर है एल्काइल हैलाइड के गैसियस स्टेट में उनको अमोनिया के ऊपर से पास करते हैं, तो HCl वहां से लिबरेट हो जाती है और आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस में जो है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन बनती हैं। हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन में क्या है कि कोई भी अमीन आपके पास है, दिस वन अमीन हियर, that amine is this amine, it is a 1 degree amine। तो इसमें NH2 ग्रुप है यहां पर आपके पास अमीन में। अगर आप इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हो तो ये जो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है ये सब्सिक्वेंटली 1 by 1 जो वो रिमूव की जा सकती हैं। यहां देखो अगले स्टेप में एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गई और आपके पास जो वो 2 मिथाइल ग्रुप जो वो नाइट्रोजन के साथ जो वो लिंक हो गई। सो दिस इज ए मेथड विच इज डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीन। अब स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा? अगर प्राइमरी अमीन है आपके पास तो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनने तक 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो मिथाइल क्लोराइड के यूटिलाइज हो जाएंगे। कहां पर? ये देखो ये प्राइमरी अमीन थी, दैट इज द 1 डिग्री अमीन फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, दिस इज द प्राइमरी अमीन। एक मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल ये ऐड हुआ, दूसरा मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल ये ऐड हुआ और तीसरा जो है वो क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनने के लिए ये ऐड हुआ। योर प्रोडक्ट इज क्वाटनरी अमोनियम एल्काइल क्लोराइड। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप तो वो हैं जो आपने खुद ऐड किए, 1, दिस इज द सेकेंड वन एंड दैट इज द थर्ड वन। और ये पार्ट जो है ये पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट था। जब आप इस कंपाउंड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो मॉइस्ट कंडीशन में यानी वाटर के साथ, तो सिल्वर का सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और OH और क्लोरीन एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसके से कि आपके पास जो है यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एक्सचेंज होके OH में चेंज हो जाएगी। वंस यू हीट इट व्हाट इज हैपनिंग, जो पार्ट आपने खुद अटैच किया वो नाइट्रोजन के साथ एट द एंड में लिंक्ड स्टेट में रह जाएगा। जो पार्ट आपने खुद अटैच किया है वो पार्ट कहां रहा? नीचे नाइट्रोजन के साथ देखो यहां पर वो अटैच्ड रहा यहां पर। सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन। और जो पार्ट उसके साथ ऑलरेडी लगा था, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, दैट पार्ट हैज बीन लिबरेटेड एट द एंड एज ए अल्कीन। तो उसकी जो वो अल्कीन बन गई। तो अल्कीन कौन सी बनी है उसको जज करके आप जो वो अमीन तक पहुंच सकते हैं कि स्टार्टिंग अमीन्स कौन सी थी। तो ये रिएक्शन जो है हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन वाला रिएक्शन जो है ये वैसे 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। यहां तक तो हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन आएगा, कहां तक? अप टू द टाइम यू आर गेटिंग द क्वाटनरी अमोनियम साल्ट्स, यहां तक ये ऊपर वाला रिएक्शन जितना भी है दैट इज द हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन। और उसके बाद जो है वो हॉफमैन इलिमिनेशन आता है, लास्ट वाला स्टेप जो है। जो स्टेप ये नीचे बच गए जहां पर मैंने हीटिंग शो कर रखी है, जिस स्टेप में हेयर आई हैव शोन द हीटिंग पॉइंट, हीटिंग दिस डेल्टा शो कर रखा है, इस पॉइंट वाला जो रिएक्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड के साथ और आगे जो हीटिंग का रिएक्शन है दैट इज द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। और उससे पहले हॉफमैन एक्सोटिक मिथिलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इसी चीज में है कि आप इस रिएक्शन से जो है वो स्टार्टिंग अमीन्स का जायजा ले सकते हैं। अगर वो NH2 ग्रुप होगा तो 3 मोल लगेंगे मिथाइल क्लोराइड के, मोल या मॉलिक्यूल बोलिए, मोल्स बोलो यहां पर। 3 मोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी अमीन। तो कितने मोल कंज्यूम हुए उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि प्राइमरी अमीन थी। अगर 2 मोल यूज हुए तो ये सेकेंडरी अमीन थी। अगर ये टर्सरी अमीन होती तो केवल 1 ही मोल लगना था क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट को कन्वर्ट करने में।
फिर उसके साथ अटैच्ड पार्ट कौन सा है वो आपको पता चल जाएगा किससे, कौन सी अल्कीन लास्ट में रिलीज हो रही है। तो जो अल्कीन रिलीज होगी वही पार्ट जो है उसको एल्काइल पार्ट में कन्वर्ट कर दो, वो किसके साथ अटैच था, दैट वाज अटैच टू द नाइट्रोजन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दैट गिव्स अस an idea to judge that what is the starting amine. Remaining portion we will discuss next time.